Now, the topic we are going to do is bioethics. Ethics means how you have to be responsible. आपकी जिम्मेदारी. So, if you just see the definition, let's read the definition from here. Ethics usually deals with the matter related to socially acceptable moral duty. Right. Conduct and judgment. You know क्या सही है क्या गलत है. That is called ethics. So when you talk about the ethics, for example, अभी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एथिक्स के खिलाफ हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, like using the rat by injecting the cancer in them and then treating them and seeing how the medicine is working for them, right? अब अगर हम रैट को ऐसी तकलीफ दे रहे हैं तो हम लोग ठीक है, केमिस्ट्री में वी आर डीलिंग मोर इनटू फार्मास्यूटिकल, वी आर लर्निंग मोर अबाउट द chemicals used on it, but we are troubling the rat, right? We are growing them, of course, yes, no problem, but when we are growing them, do we have the right to trouble them? If we are making them alive, if we are growing them, doesn't mean we have got the right to give them pain. So ये है ethics के खिलाफ. So ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए जो बहुत important होता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल जो यहाँ पे इन्होंने, आई वुड लाइक टू जस्ट डील विद इट, विल जस्ट रीड इट. ओके, एथिक्स विच स्पेशली स्पर्म बैंक. ओके, लेट्स से स्पर्म बैंक, जीन थेरापी, क्लोनिंग, ये सारी जगह एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है. सबसे कॉमन यूथनेशिया. आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट यूथनेशिया. यूथनेशिया एक वो कंडीशन है जब someone is not able to do his or her work individually. मतलब बिना एक दूसरे इंसान के मदद के वो अपना कोई भी काम नहीं कर पाता, मतलब बेड रिडन है. तो उस इंसान ने कोर्ट से डिमांड किया, इट हैपेंड कि आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस, आई वांट टू डाई, टेक ऑफ द ventilators or take off the cylinders which are supplied to me. I want to be killed. Give me medicine to die. That's what they said. And court has now approved for it. Basically, when you are talking about euthanasia, it was not at all approved. But in very severe cases, now it is allowed. Wherein they don't have to live in this vegetable condition. कुछ condition ऐसे होते हैं जहाँ पे they know कि they cannot come out of that condition. So here bioethics, like doctors can actually kill them by giving medicines, लेकिन वो ऐसा नहीं करते. वो उन्हें तो भी alive रखते हैं. They keep them alive. They make them work with the medicines and on the oxygen cylinders, whatever supportive measures can be given to them. So doctors are doing the best. So ethics are worked upon. Like this is kind of ethics that are practiced in our day-to-day life. ऐसे बहुत सारे conditions हैं. Even there are people who select their children's gene. They don't want a child with this problem or that problem, so they say that we want a child who's very intelligent, can sing, so they basically select the genes. But that is against bioethics. It is not good. You should be happy with the child, whoever the child's whatever be the child's characteristics, you should be able to accept it because the child is all yours, right? That's how it is. So it's again an ethical part कि you cannot demand for a particular characteristics in a particular, this is a kind of moral duty. So moreover bioethics का मतलब होता है जो कि डील करता है हमारे बिहेवियर वाइज राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस के हिसाब से हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी towards the society. Okay, then we have in biotechnology, we go to the next page.
here बायोटेक्नोलॉजी के अंदर you have this part. Ethics in biotechnology also includes the general subject of what should and what should not be done in using. अब यहाँ पे भी ethics आ जाते हैं कि recombinant DNA क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे भी ethics आते हैं. You cannot just go ahead and do whatever that you feel like, right? So it's basically the moral duty, okay? Not much is required in this. Then we talk about the next topic. Biotechnology, effect of biotechnology on the environment. So when you talk about the effect of biotechnology, how these things have affected the environment, सबसे पहले एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है हर्बिसाइड यूज़ एंड रेजिस्टेंस. तो हम लोगों ने GMO क्रॉप्स इतना यूज़ किया है जिसके वजह से if you just underline this part, because of biotechnology, बेहतर फूड के वजह से अभी हमें ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ रहा. So that is the plus point that we have seen. Then the next point is effect on untargeted species. हम अगर कुछ बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, हम किसी और के लिए यूज़ कर रहे हैं, like I told you in BT cotton, no? Like that we have BT corn also, wherein BT corn क्या करता है, it has got gene that actually kills the insect that feeds on them, right? But corn के ऊपर जब butterfly feed करता है तो butterfly भी target हो जाता है. Butterfly is also targeted, and which butterfly? Monarch butterfly, that already has been affected by so much of pollution. So this is untargeted species. BT corn में it is the target of making BT corn is to avoid insects grazing on them. जो कीड़े मकोड़े हैं वो उस पर ग्रो नहीं करने चाहिए. They should not feed on them. They should not be continuing their generation. तो इसीलिए BT corn बनाया. But unfortunately जो बाकी के इंसेक्ट्स को होना चाहिए वो कुछ और स्पीशीज़ को टारगेट करे, जैसे कि हमारे monarch butterfly. These butterflies are being targeted because when these butterfly feeding on them, butterfly is being killed, unfortunately. So these are the main effects of biotechnology on environment. So remember the points. First point, the best point it is herbicide use कम भी हो गया और साथ में उसका इंक्रीज हमारा नेगेटिव, अगर हमने इंक्रीज किया होता तो क्या होता है, हमारा सॉइल पोल्यूशन बढ़ जाता है, राइट? So that's what it's saying. And the second point is untargeted species. हमने जिसके लिए बनाया था BT cotton, जिस इंसेक्ट के लिए, उसके साथ साथ दूसरे इंसेक्ट भी इफेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल monarch butterfly is getting reduced in the environment because of the effect of BT's gene. Okay, Bacillus thuringiensis. That's what we learned. Next is effect of biotechnology on ह्यूमन हेल्थ. अब जो बायोटेक्नोलॉजी के कारण जो खाना बन रहा है, मतलब हमारा जो GMO फूड बन रहा है, इट इज़ गिविंग इन अनएक्सपेक्टेड एलर्जिक रिएक्शंस. ओके, लाइक आपने बहुत सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट भी देखा हो, नट एलर्जीज पैकेट्स में लिखा होता है एलर्जेंस डन इन नट फैक्ट्री, इट इज़ एलर्जिक. Allergic reaction can happen. Be cautious while consuming. ऐसे कुछ कॉशनरी चीज़ें, कुछ खाने की पैक्ड थिंग्स के ऊपर लिखा होता है. देन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? सो बेसिकली लॉन्ग टर्म इफेक्ट का इतना रिसर्च नहीं हुआ. सो दे हैव नॉट कंक्लूडेड दैट. इट्स लाइक एंटिसिपेटेड काइंड, मतलब इंतज़ार हो रहा है कि अगर कंटिन्यूसली कोई GMOs कंज्यूम करेगा, so what can happen? So that's what it says. Long term effect, they have still they have to still work on. When you have the new protein, next is new protein, wherein हमारी बॉडी के अंदर unknown protein are being ingested. It's like humans को आदत है जो बेसिक प्रोटीन खाने की, तो नए नए प्रोटीन आ रहे हैं तो बॉडी कंफ्यूज हो रहा है कि इसको कैसे डाइजेस्ट करना है.
right? So the potential effects, or we can say how the body works, the digestive system works, it is not coming out 100%. The result is not coming out 100%. Then the fourth important point is food additives. हम कुछ कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं खाने के अंदर, जिसके वजह जो होता किस लिए, डिजीज़ को इंसेक्ट और पेस्ट से बचने के लिए. एंड इट्स लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने बात करी थी कुछ टॉपिक के पहले कि फूड को खाने से वैक्सीन का जैसा काम करता है, पोटैटोज, राइट? सो दोज थिंग्स आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन ऑल्सो. न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा. कभी कभी जो फूड खाते हैं वैक्सीनेशन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना चाहिए ना. सो द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट कमिंग अप टू द लेवल. So it's like not that successful. Basically, people are not advised to have GMO foods only. So continue for the society. तो ये कैसे हम इन फूड को इंट्रोड्यूस करेंगे? तो इसके लिए we have a committee. This committee is called as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee. तो ये actually certain validations रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. So these are the effects of biotechnology on human health. Allergies, long-term effects को इतना स्टडी नहीं किया, but still they have included it. New protein and the food additives. Then after food additives, we have biopatent. Biopatent and biopiracy. Patent का मतलब है हमारा right. Okay. So हमारा right जब हमने किसी चीज़ को इन्वेंट किया है तो वो हम बोलेंगे दिस इज़ माई आर राइट. सो लेट्स सी फर्स्ट द डेफिनेशन. यू कैन अंडरलाइन इट. पैटेंट इज अ स्पेशल राइट granted to the inventor by the government. So basically पैटेंट एक इंसान की प्रॉपर्टी बन जाती है. उस पर्टिकुलर इंसान जिसने खोजा है उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है. एंड इट कैन बी सोल्ड लाइक अ प्रॉपर्टी. ज़मीन जैसे हमने खरीदी हो तो वो प्रॉपर्टी हमारी है. लेकिन वैसे ही हम किसी चीज़ को ढूंढ निकालते हैं. एक्चुअली वी फाइंड समथिंग. मे बी हमको लगता है शुरू में कि इसका यूज़ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जो किसी को नहीं पता था वर्ल्ड में. तो हम गवर्नमेंट को लिख के इसका पैटेंट ले सकते हैं. मतलब नाउ that particular thing will be named also with my name. ऐसा भी हो सकता है. And it cannot be used for making any other thing. कोई और उससे कोई और चीज़ें बना नहीं सकते. For example, let's take an example, small example, which we have in the textbook. That's the neem. एक्चुअल में नीम का जो है, गो टू पेज नंबर 290, यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ नीम. कड़ू नीम. यू से, आई थिंक दैट्स व्हाट यू यूज, नो? करी लीव्स का ऑपोजिट पीपल ओवर हियर दे टॉक. इट्स नीम. नीम इज द प्लांट दैट इज़ वेरी antiseptic kind, antifungal, antiseptic, antibacterial kind of, जिसको हम हर एक ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं. सो इन इंडिया इट वाज ऑलरेडी यूज्ड. ये नॉलेज इंडिया के लोगों में था. लेकिन यूएस में एक बंदे ने, इट्स लाइक एक साइंटिस्ट ने पैटेंट कर लिया नीम को. उन्होंने क्या बोला कि नीम को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, वैसे यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने डिस्कवर किया है इसके बेनिफिट्स को, तो आई वांट द पैटेंट. सो हु वाज दैट फेलो? दैट पर्सन वाज W.R. Grace, right? And he was basically from US. And this patent people, they said, okay, fine, हो सकता है ऐसा. But later on it was realized that it's not true. So what do we understand out of this? था तो वो प्रॉपर्टी इंडिया का. इंडिया में बरसों से आयुर्वेद में यूज़ किया जा रहा था नीम के बेनिफिट्स को. लेकिन यूएस में
this particular specific person has actually applied for patent and told the world that he has discovered, or that particular company has discovered, the basic characteristics of neem and how it can be used as a fungicide. But it is an example of biopiracy. जो चीज़ ऑलरेडी फेमस थी, जो चीज़ ऑलरेडी बरसों से यूज़ करी जा रही थी, उसको पैटर्न, मतलब पैटर्न मिलना होता तो किसी एक इंडियन आचार्य के नाम पे होना चाहिए था, किसी मे बी सम इंडियन हु हैज़ एक्चुअली डिस्कवर्ड दैट, द ओल्डर पीपल्स, यू नो, ऋषिज एंड मुनीज हु एक्चुअली लुक्ड अबाउट द बेनिफिट्स, तो उनके नाम से पैटेंट होना था, लेकिन वो पैटेंटिंग रॉन्ग गया. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायो पायरेसी. दूसरा एग्जाम्पल है, एक मिनट, बायो पैटेंट. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इट्स सेइंग. अब एक इंसान को पैटेंट चाहिए, चलो हम पीछे जाएंगे, तो कैसे उसको पैटेंट मिलता है. लेट्स सी दैट. वी आर ऑन पेज नंबर 289. एक इंसान को पैटेंट कैसे मिलता है. दैट हैज़ 3 parts: ग्रांट, एग्रीमेंट विद द इन्वेंटर, स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफाई कर देते हैं कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, क्या उसने इन्वेंट किया है, और क्लेम कि इससे क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें. दीज आर द 3 कंस्ट्रक्शंस इन अ पैटेंट. सो पैटेंट में ये 3 ज़रूरी होता है. बायो पैटेंट इज़ बायोलॉजिकल. वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट कैन बी स्पेसिफिक टू ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मे बी कोई जेनेटिक स्ट्रेन के लिए होगा, या डीएनए सीक्वेंस के लिए होगा, या उनका कोई प्रोडक्ट बनाया है हमने तो उसके लिए भी हो सकता है, राइट. देन इवन इंडियन पैटेंट वाले जो चीज़ें हम लोग डिस्कवर करते हैं, मे बी इफ़ वी रियलाइज दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ गुड, तो उसकी बेचने में भी, उसका कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के उसको बेचना, इम्पोर्टिंग, ऑल दीज थिंग्स आर लिमिटेड. दैट इज़ नॉट अलाउड टिल द टाइम द पैटेंट होल्डर डज नॉट allow, give permission. Okay, only the patent holder can sell, no one else can sell it. And ये बायो पैटेंट इन्होंने दिया है 5 साल के लिए. आफ्टर द 5 years और 7 years पैटेंट का जो एप्लीकेशन है वो हम चेंज कर सकते हैं, एंड अनदर पर्सन कैन टेक द पैटेंट बट विद अ न्यू थ्योरी और न्यू कॉन्सेप्ट. ओके, सो फर्स्ट बायो पैटेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसको मिला था, it's not specified over here. Okay, it's a company. They have not specified the name in your syllabus. सीडोमोनास करके एक बैक्टीरियम है. सीडोमोनास को जेनेटिकली बनाया गया था, बायोटेक्नोलॉजी के लैब में जेनेटिकली बनाया गया था, एंड बनाने के बाद इनको उन पॉन्ड्स में छोड़ दिया गया था जहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन था. सो स्लोली, पोल्यूशन किस चीज़ का? ऑयल का. ओके, ऑयल स्पिल्स से बहुत सारा ऑयल गिरा होता है, तो कैसे लेयर, ऑक्सीजन लेयर रुक जाती है ना अंदर. ऑक्सीजन कैन नॉट एंटर इनसाइड द लेक्स एंड रिवर्स, नॉट रिवर्स, सॉरी, द पॉन्ड्स. स्टैग्नेंट एरिया में ही होता है ये. सो ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए सूडोमोनास को यूज़ किया गया, एंड दैट वाज फर्स्ट डन बाय डेल्टा एंड पाइनलैंड कंपनी एंड US डिपार्टमेंट of agriculture. So this was the first bio patent that was very beautifully done, and it was very effective. अभी भी लोग वो करते हैं. They implant Pseudomonas into certain areas where there is lot of oil spills. वो oils को वहाँ से remove कर, they actually consume it एंड क्लियर हो जाता है. कंज्यूम ऑयल वहाँ से हट जाता है तो ऑयल पोल्यूशन, वहाँ का जो वाटर पोल्यूशन हुआ था वो कम हो जाता है. सो इट बिकम्स, द प्लेस बिकम्स मोर ब्यूटिफुल एंड इट बिकम्स मोर लाइवली फॉर स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स टू लिव देयर. ओके, अब जो बायो पैटेंट में जो बनाता है उसको हमने बोला पैटेंट, राइट. जो बंदा जिसने कुछ डिस्कवर किया है या कुछ किया, यू नो, रिलेटेड टू द पर्टिकुलर थिंग. अभी जैसे नीम का बताया था. अब जो उसे चुराता है उसको हम बोलते हैं पायरेट्स.
Okay, so if you are actually misusing the other person's discovery, you are being called as pirates. So that is a case of biopiracy. पायरेसी वर्ड तो आपने सीडीज़ में वगैरह सुना होगा, मूवीज़ की सीडीज़ जो ओरिजिनल नहीं होती, डुप्लीकेट पीपल सेल इट, सो दे ऑलवेज हैव द एडवर्टाइजमेंट दैट अवॉइड पायरेसी, go for original CDs, right? So that's how piracy is generally when you are taking somebody else work, किसी और का किया हुआ मेहनत अपने ऊपर लेते हो, या you are telling the world that you are responsible. It's like cheating, no? It's like forging, or you can say something which is against the ethics. और ये बहुत कॉमन पाया जाता है जो नेशंस, बड़े बड़े नेशंस हैं. जैसे आप खुद अभी एग्जाम्पल दिया टर्मरिक का. व्हाट हैपेंड इन दैट? इट वाज बेसिकली, Don't want to step out just for a small bunch of dhania? A packet of Maggi or only 2 oranges will deliver by 7. You have biopiracy is next very common example. जब हमें patenting हुआ था बासमती राइस का, so basmatis are known as the long grained rice, right? एक और एग्जाम्पल है बायो पैटेंटिंग का. सो लॉन्ग ग्रेन राइस था. ये बने कहाँ थे, शुरुआत हुई कहाँ थी? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. लेकिन हम बता क्या रहे हैं कि वेन एवर देर इज़ पैटेंटिंग हमेशा ऐसा होता है, जो रिच कंट्रीज़ होती है वो पुअर कंट्रीज़ की क्वालिटी चीज़ें ले लेती है, जो ब्रिटिशर्स ने किया था, राइट? दे वेर लाइक थीव्स, दे टुक अवे थिंग्स फ्रॉम अस. So now also they are doing it, certain people in that region. It's like basmati was born in India, but US people, we have a company named Rice Tech. What they did, they made slight change and gave the name Texmati. And this rice was sold, and later on claim was made, and then it was actually, there were so many people who rejected, who actually didn't stand for this kind of patenting, because they know basmati was not formed in America. It was just brought from there. It was first formed in Indian subcontinents. So there were many people who actually, तभी तो धरना होता है जब people don't accept what others are doing. So this is another example of biopiracy. चुराया था, नीम का भी चुराया था, बासमती भी चुराया था. एंड यू हैव टर्मरिक, वन ऑफ द वेरी मोस्ट ऑस्पिशियस आयुर्वेदिक product which we have in India, that's from Ayurveda, the best healing property medicines we have available. इसको भी यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में 2 अमेरिकन्स ने उसको अपना पैटेंटिंग दे दिया था, और फिर बहुत पैसे कमाए थे उन्होंने. और फिर उन्होंने लोगों को भी रोक दिया था कि उसके प्रोडक्ट्स बना नहीं सकते, दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकते ना अगर एक बार पैटेंट मिल गया. फिर बाद में जब पता चला कि ऐसा नहीं है, इंडियन साइंटिस्ट ने फिर बहुत मेहनत करी, एंड देन दैट वाज टेकन अवे. मतलब उनके नाम से, उनके हाथ से it was taken away, the patenting was taken away from them because it was a lie. So we have 3 examples of biopiracy that you can just go through. It is, one is basmati, one is neem, and another is haldi. And people who take away the ideas from others, they are called as pirates, biopirates. Okay, we are talking about a specific living things. So the chapter comes to an end.